how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, मैंने ये चैप्टर आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है, समझाया है, पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने मांगे थे, तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के आपको दे रही हूँ एज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. लोकल गवर्नमेंट is the government at the village and district level involving the day-to-day life and problems of ordinary citizens. Local government ensures that people participation in the meaningful manner to run the administration. The development at any place can be done through the cooperation of the people living at that particular place only. Earlier, the self-governing village communities existed in the form of sabhas, village assemblies, and later on it was converted into village panchayat, an assembly of 5 members. Under the Government of India Act 1979, village panchayats were established in a number of provinces and continued after the Government of India Act 1935. During India's freedom movement, Mahatma Gandhi strongly pleaded for decentralization of economic and political power to ensure local involvement to be successful. The central or state governments cannot tackle the problems faced by people in such a large country. Hence, the involvement of local authorities was felt to sort out the local problems known as local self-government. Local self-government manage the local affairs by the representatives who knows the best about local needs and aspirations of people. In the big cities of India like Delhi, Mumbai, the municipal corporation look after the interest of the people, and in small cities, municipal committees look after the interest of the people. In 1882, the Viceroy of India, Lord Ripon, created the local boards in the form of local government. In 1992, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the Parliament. The 73rd Amendment is about rural local governments known as Panchayati Raj institutions. It demarcated the levels of Panchayati Raj in Gram Panchayat, the base, Mandal, that means block, intermediary, and the Jila Panchayat apex. The 73rd Amendment included the 3-tier structure mentioned above, elections at every regular interval of 5 years, reservations for SCs, STs and OBCs, and 29 subjects from state list in 11th schedule of constitution were transferred to Panchayati Raj institution. तो चिल्ड्रन, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं जिससे कि हम इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, उनको सॉल्व करने का काम करती है. लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोकल में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वह पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, उनमें इंटरफियर करके न्याय करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. अब पहले के समय में जो सेल्फ गवर्निंग विलेजेस होते थे वहाँ पर सभा होती थी, गांव की असेंबलीज होती थी, सभा के नाम से जानी जाती थी. वहाँ पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था. बाद में उसे ही विलेज पंचायत का नाम दिया गया. जब हमारे भारत में इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम हो रहा था तो महात्मा गांधी ने बहुत ही स्ट्रांगली इस बात पे जोर दिया कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है वह इतनी बड़े देश में एक व्यक्ति के हाथ में या एक सेंट्रल के हाथ में ना हो करके वह बटी हुई होना चाहिए, स्टेट, सेंट्रल और फिर लोकल गवर्नमेंट्स के रूप में. तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम किया गया कि इतनी बड़ी कंट्री को कोई एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इसलिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इस सिस्टम को रखा गया. शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं
वह काम करते हैं। वहीं स्मॉल सिटीज़ में म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, वह लोगों की प्रॉब्लम्स को या उनके लिए काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 1882 में जो हमारे भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसने एक बोर्ड बनाई थी और उसमें उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो थी वह फॉर्म की थी, और फिर वहीं से ये आइडिया हमको मिला। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट हमारे यहाँ हुआ, और उसमें 73rd अमेंडमेंट में बोला गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वह रूरल एरियाज़ के लिए बनाए जाएंगे, और ग्राम पंचायत जो होंगी, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो होंगी, इस लेवल पर काम किया जाएगा। फिर मंडल ब्लॉक लेवल पर काम करेगा, और जिला पंचायत जो है वो जिले लेवल पर काम करेगा। 73rd अमेंडमेंट के बाद 74th अमेंडमेंट ही किया गया। 73rd अमेंडमेंट में SC, ST, OBC इनके लिए भी जो है इलेक्शंस में कुछ स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर लाया गया, और इसके साथ साथ कुछ उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाए गए, और इसके साथ साथ जो 29 सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में वह ऐड किए गए, जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी उसी में ऐड किया गया। चिल्ड्रन, इस तरह से मैंने आज आपको समरी दी। हमारा जो चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में क्लास में भी आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। ये आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, और जो ये नोट्स मैंने दिए हैं इनको आप एज अ समरी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन